देख रहे हैं आ कलम न्यूज टीवी। Morning, how are you all? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं राकेश सिंह जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत धन्यवाद। मैंने आपको कहा था ना कि हम आशीष जी करेंगे। आशीष जी आपको भी बधाई। जी जी आपको भी बधाई, जबलपुर को बधाई। चलिए शुरू करें। So good morning to everybody. Will PWD Minister Mr. Rakesh Singh ji joining us from VC. Our friends from the telecom industry, Savi, Arun, Harish, Nitin, and CMD BSNL Ravi. So we are embarking on a very new journey today, for which the nucleus is Jabalpur. Jabalpur, also being in the center of the country, is very soon poised to become the center of telecom training for the entire telecom ecosystem of the country, sir. This is envisaged under the leadership of the Honorable Prime Minister and your own leadership and the leadership of the Honorable MOS to make Madhya Pradesh the epicenter of the knowledge, train not only the public sector staff, train the trainers, but also students and the employees of our telecom service providers over a period of short-term, medium-term and long-term courses. And we hope that this will provide fillip to the employment, economy, not only to the state of Madhya Pradesh, but to the rest of the country, sir. With this, I request the start of the program. Good morning. राकेश सिंह जी, आपको थोड़ी जल्दी है या थोड़ा आधा घंटा है, 15-20 मिनट है? हमें जल्दी इसलिए है कि आज हमारा एक वर्कशॉप है, उसमें सीएम भी रहने वाले हैं, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आए हैं, तो थोड़ा 15 मिनट जी आए हैं, थोड़ा 15 मिनट अभी 11 बजे वो भी कर। हाँ, थोड़ा 15 मिनट उनको इंतजार करवा दीजिएगा, पहले थोड़ा MOUs कर लें, उसके बाद उसमें सीएम पहले पहुंच जाएंगे। तो मैं चाहता था कि मैं आपको धन्यवाद देके और आपकी अनुमति हो तो फिर मैं निकल जाऊँ। में ये भी बोला है कि इस कोर्स में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से कुछ लोग क्वालकॉम में एब्जॉर्ब होंगे एज ट्रेनी एंड फ्यूचर उनका क्वालकॉम में रहेगा। नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट श्री तरुण छाबड़ा, इंडिया हेड नोकिया, एंड श्री रॉबर्ट रवि टू एक्सचेंज द MOU. Congratulations. नोकिया स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, जो दूरसंचार स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है भारत सरकार का, उसके अधीनस्थ स्पेशल ट्रेनिंग और अपने CSR प्लान से ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए का बजट इस साल खर्च करेगी इन ट्रेनिंग एंड क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। Wonderful. Thank you so much. शुरू कर रहे हैं सर, आज से वहाँ जबलपुर में ट्रेनिंग शुरू हो रही है। Thank you. थैंक यू वेरी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सांसद भाई आशीष दुबे जी, पूर्व में उपस्थित हमारे PWD मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे दूरसंचार मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल जी, BSNL के CMD रॉबर्ट रवि जी, अनिल जी, निजी क्षेत्र के हमारे सभी सहभागी, कि एक ही कड़ी में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। We're all cogs of the wheel of motion that brings alive this technological communication revolution to the grassroots of India. And for that, I thank all our members, Nitin Bansal ji from Ericsson, Savi Sonal Sahib from Qualcomm, Tarun Chhabra ji from Nokia, Harish Krishnan ji from Cisco, and my friends from the media present here. Today is a very historic and landmark day. The Prime Minister of India, Narendra Modi ji, has always had a vision
vision of India first, a vision of growing India into a Vishwaguru. And that vision of growing India into a Vishwaguru, being powered by India, being powered by Indians, but being powered not only for India, but for the world. And today that vision of local to global, that vision of make in India but make for the world, that vision of India not only being a source for services, but a vision for India to become in the future. आज सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे उपस्थित भारत सरकार के माननीय संचार मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उपस्थित हमारे विभागीय सचिव महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और अभी जिनके साथ MOU साइन हुए हैं, यहाँ पर हमारे कंपनी से आए सभी अधिकारीगण, उपस्थित साथियों और पत्रकार मित्रों, आज मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में जो बढ़ते भारत, निखरते भारत की जो तस्वीर आज हमारे सामने आई है, उनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं आप दोनों को। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश और जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि एक बड़ी सौगात माननीय सिंधिया जी के द्वारा मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश में भी आज मैं अपने आप को यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस जबलपुर की बात हो रही है और आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर जबलपुर का नाम लिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ और बहुत गौरवान्वित अपने आप को आज यहाँ इस सभागार में बैठकर महसूस कर रहा हूँ। मैं माननीय सिंधिया जी को बार बार कहता था कि भाई साहब, जबलपुर के लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं कुछ बड़ा दूंगा, और आज मैं आप सबके माध्यम से उनको जबलपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी चीज जबलपुर संसदीय क्षेत्र को देने वाले। ये उनका लगाव, उनका कहीं ना कहीं जबलपुर के प्रति लगाव है। और जबलपुर निश्चित रूप से हम जिस संस्थान की बात कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय, हमारे भारत के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संस्थान हमारे यहाँ था, और वो पूर्व में कुछ समय से उसकी ख्याति में कमी आ रही थी। लेकिन माननीय सिंधिया जी के विभाग संभालने के बाद आज मुझे लगता है कि उस संस्थान को वह ऊंचाइयां मिल रही हैं जो अब भारत से निकलकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक जा रही है। आज हमको, अगर भारत युवाओं का देश कहलाता है, जहां 50% से ज्यादा अगर युवा रहते हो, तो युवाओं को समय के साथ चलना अगर जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम हमारे संचार मंत्रालय ने किया है, माननीय परम आदरणीय सिंधिया जी ने किया है, और आज जबलपुर में जब उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज टीवी।